برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تمہیں تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، سال میں ایک مہینہ مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں لعلکم تتقون، شاید کہ تمہیں پرہیزگاری پیدا ہو، تقویٰ پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف تمہارے اندر آئے۔ اس بات پر ذرا سا غور کر کے دیکھیے کہ اسلام کی جتنی بھی دوسری عبادتیں ہیں، جیسے نماز ہے، ایک وقت میں چند منٹ سے زیادہ نہیں ہوا کرتی، اور اسی طرح سے زکوٰۃ دینے کا جو وقت ہے سال میں ایک مرتبہ، کسی بھی اپنے مال پر ایک سال گزر جانے پر اس کی زکوٰۃ دینا واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے حج بھی، یعنی یہ تو عمر بھر میں ایک مرتبہ اور اس کے لیے کئی دن صرف ہوتے ہیں، وہ بھی سب کے لیے نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر اس بات پر غور کیجیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک پورا مہینہ انسان کی ٹریننگ اور تربیت کے لیے رکھا ہے کہ وہ اس پورے ماہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، شریعت محمدی پر پوری طرح سے عمل کرتے ہوئے تقویٰ اور پرہیزگاری اپنے اندر پیدا کرے۔ تو یہاں روزے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری آئے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہمارے اندر پیدا ہو۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ جو ایک وقت مقرر تک، یعنی سحر سے لے کر افطار تک ہم پر کچھ حلال چیزیں جیسے کھانا پینا ہے، اسے رکوا کر اللہ تعالیٰ ہم کو یہ ٹریننگ کرواتے ہیں کہ وہ سارے حرام کام جو عام دنوں میں بھی حرام ہیں اور رمضان میں بھی حرام ہیں، ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اور یہ ایک مہینہ پوری طرح ٹریننگ کرنے کے بعد ہم اس کے جو 11 مہینے ہیں، بعد کے 11 مہینے، ان پورے 11 مہینوں میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کے مطابق، اس کے احکامات کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس ایک مہینے میں تو اللہ تعالیٰ کی جو یعنی حلال چیزوں کو بھی کچھ دیر جو رکواتا ہے ہم اس سے رک جاتے ہیں، اور حرام چیزوں سے بھی کچھ نہ کچھ بچنے کی ہم لوگ کوشش کر لیتے ہیں، لیکن جیسے یہ مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو ہم وہ ساری چیزوں میں پھر سے ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو ٹریننگ کا، تربیت کا یہ مقصد نہیں ہے۔ ایک مہینہ جو آپ کو تربیت دی جا رہی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ بعد کے 11 مہینوں میں ہم اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ تو یہاں پر سوچنے والی بات یہی ہے کہ ایک ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، اور دوسرا ضبط نفس آئے، کنٹرول آئے ہمارے اوپر، کہ ہم اپنے آپ پر کنٹرول کرنے والے بنے۔ جیسے دیکھیے، اگر یعنی جو حلال چیزیں ہیں جو یعنی سحر سے لے کر افطار تک، جیسے کھانا پینا اور یعنی نفسانی خواہشات، اس سے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو روکا ہے اور ہم اس سے رکتے ہیں، تو وہ ایک طرح کا کنٹرول، ایک ضبط نفس ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی یہ ضبط نفس، یہ ٹریننگ اس بات کی دی جاتی ہے کہ تم اس طرح سے جو حرام کام ہے اس سے بھی بچنے کی تم کوشش کرتے رہنا۔ تو روزے کا اصل مقصد یہی ہے، ایک تو تقویٰ اور پرہیزگاری تمہارے اندر آئے، دوسرا نفس پر کنٹرول، اپنے آپ پر کنٹرول تمہیں آئے کہ تم وہ ساری برائیوں سے بچتے رہو۔ جیسا کہ ہم خواتین ہیں تو یہاں پر ہم اس ضمن میں کچھ ان باتوں کو سوچنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا اکثر ہوتا ہے خواتین میں، جب 3-4 خواتین مل بیٹھتی ہیں تو غیبت، چغلی اور بدگمانی جیسے یہ اخلاقی برائیاں ہمیں ہوا کرتی ہیں، اور ہم اس کو معمولی بات سمجھ کر ہم یوں ہی ہم اس کو کر لیتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ غیبت ہو یا چغلی ہو، بدگمانی ہو، یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جو ہم سے سرزد ہو جایا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خواتین کا جو واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، اکثر ہم اس کو سنتے بھی رہتے ہیں کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ہم دونوں خواتین سے کہ تم نے روزہ رکھ کر جو چغلی کی ہے اور تمہارا روزہ ٹوٹ چکا ہے، اور ان کو وہاں پر اس وقت خے کرنے لگایا تھا، ان کی خے میں خون وغیرہ اس طرح سے نکلا تھا۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھ کر اگر ہم غیبت کرتے ہیں، اگر ہم چغلی کرتے ہیں، اگر ہم بدگمانی کرتے ہیں تو اس سے ہمارا روزہ خراب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ تمہاری آنکھ کا بھی ہو، تمہارے کان کا بھی ہو، تمہاری زبان کا بھی ہو، پورے اعضاء کا روزہ ہو۔ ایسا نہ ہونے پائے کہ ہمارے روزے سے اللہ تعالیٰ کو صرف ایک بندے کو بھوکا اور پیاسا رکھنا بالکل مطلوب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ ضبط نفس آئے، ہمارے اندر یہ کنٹرول آئے کہ جب بھی ہم کوئی برائی، کوئی گناہ کا کام کرنے آگے بڑھیں تو فوراً ہمارے اندر یہ ہمارا ضمیر اس بات کو ہمیں
मलामत करे कि तुम ये गलत काम कर रहे हो, तुम ये खराब काम कर रहे हो, इससे तुम्हें बचना होगा, अल्लाह ताला ने इसे मना फरमाया है। तो ये ज़ब्त नफ्स और कंट्रोल अल्लाह ताला हमारे अंदर पैदा करना चाहते हैं रोजे के जरिए से। तो हम गौर करें कि इस पूरे महीने में हमारी इस तरह से तरबियत हो कि हम बदगुमानी से बचें, झूठ से बचें, गीबत से बचें, चुगली से बचें, खुद भी बचें, और दूसरा भी अगर हमारे सामने कोई इस तरह की बात कह रहा हो तो हम उसे भी एहसन अंदाज में, अच्छे अंदाज में हम समझाने की कोशिश करें। जो रोजेदार होता है वो इन्हीं कुछ गुस्सा भी इसको जल्दी नहीं आना चाहिए, गाली गलौज भी नहीं करना चाहिए। अगर दूसरा कोई लड़ाई झगड़े पर उतर आता है तो उसे चाहिए कि उसे कहे कि मैं रोजे से हूँ। तो यानी ये सारी तालीमात हमको ये भी बताती हैं कि हम अपनी जिंदगियों को इस तरह से गुजारें। तो ये जो अखलाकी खराबियाँ और बुराइयाँ हमारे अंदर पनप जाती हैं, परवान चढ़ती हैं, तो हम इसको अपने अंदर से निकालने की हम कोशिश करें। ये महीना हम इस पर हम पूरी तरह से ध्यान देंगे तो ये एक रोजे का सही मकसद हमारे सामने होगा। साथ ही देखिए आप, इस महीने में हम एक पूरी तरह से एक रूटीन के तहत हम सारे कामों को अंजाम देते हैं बराबर से। जैसे कि एक पुलिस में जैसे ट्रेनिंग होती है, उसी तरह से यहाँ जैसे बिगुल बजता है तो जैसे ये लोग यानी दौड़ते हैं, पूरा काम अंजाम देते हैं एक साथ, उसी तरह से यानी रमजान में भी अल्लाह ताला एक इज्तिमाई माहौल होता है सारे कामों को करने का। तो यहाँ पर भी ये लोग एक साथ उठते हैं, सहर करते हैं, सहर का वक्त खत्म हो रहा है, फिर इसी तरह से सारे काम अंजाम देते हैं। हम इसमें ज्यादा से ज्यादा वक्त निकालते हैं कि अल्लाह ताला की इबादत में हम मशगूल रहें, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यहाँ अगर हम इस रमजान में एक फर्ज अदा करते तो गया वो दूसरे दिनों में 70 फर्ज अदा करने के बराबर है। एक नफिल अगर हम अदा कर रहे तो गया वो आम दिनों में अदा किए गए फर्ज के बराबर है। तो ये नेकियों का मौसम बहार है, तो हम ज्यादा से ज्यादा नेकियां समेटने के लिए अल्लाह ताला की इबादत में हम मशगूल रहते हैं। तो जैसे हम वक्त निकालते हैं कुरान मजीद की तिलावत का, तो यहाँ पर हमको ये करना होगा, हमारे दरमियान में दौड़ सी लगी रहती है कि हमने एक कुरान खत्म कर लिया, 2 खत्म कर लिए, 3 कुरान खत्म कर लिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नाज़िरा पढ़िए आप, इसे यानी हमको पढ़ना भी है, लेकिन साथ ही आप 1 या 2 रुकू तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़कर देखिए कि ये जो किताब हिदायत अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल फरमाई है, ये हमसे किस तरह का मुतालबा करती है कि हम अपनी जिंदगियों को कैसे गुजारें। तो यहाँ हम गौर कीजिए कि इस कुरान को जो खास इस महीने में नाजिल हुआ और उसकी वजह से ये महीने को जो फजीलत दी गई है, तो हम इस कुरान को समझने की कोशिश करें, इसको हम तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़कर देखें। कई मुफस्सिरीन की तफासिर हमारे पास मौजूद हैं, तो हम एक वक्त निकालें इसके लिए, एक टाइम टेबल बनाएं हम। तो ये जो रूटीन हमारी रहेगी एक पूरा महीना, तो हम इस तरह की रूटीन को बाद के 11 महीनों में भी जारी रखते हुए इन सारी चीजों को हम पढ़ने की कोशिश करें। एक बात हमारे जहन में ये होती है कि नहीं, हम आम लोग हम कुरान नहीं समझ सकते, इसके लिए उलमा और आलिमों की जरूरत होती है। तो ये हमें देखना होगा कि किसी आलिम का लिखा हुआ कुरान, किसी आलिम की लिखी हुई तफसीर, तर्जुमा हम वही पढ़ रहे हैं। तो यानी जहाँ बहुत सारे उलूम हम हासिल कर रहे हैं, तो वहाँ इस किताब हिदायत को समझने की, इसके डीप तक जाने की हमको कोशिश करनी चाहिए। जहाँ कहीं कोई मामला हमको समझ में ना आ रहा हो, तो वहाँ उलमाओं से हम इस्तेफादा कर सकते हैं। तो इस बात की कोशिश हो कि इल्मी इर्तिखा हमारे अंदर बढ़े, हमें पता चले कि क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या अल्लाह ताला के अहकामात हैं, क्या उसकी जो है सो नाफरमानियाँ हैं, हम क्या काम करें और किस चीज़ से हम रुकें। तो ये सारी तालीमात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मुस्तनद शक्ल में, कुरान मजीद की शक्ल में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की शक्ल में, सहाह सित्ता की शक्ल में हमारे दरमियान में मौजूद है। ये अल्लाह ताला का कितना बड़ा फजल, उसका कितना बड़ा एहसान है कि उसने ये ऑथेंटिक एक मुस्तनद चीजें हमारे दरमियान में है। आप गौर कीजिए, अगर ये मुस्तनद चीजें ना होती तो पता नहीं हम ये हक को ढूंढने के लिए कहाँ जाते, कितनी मुश्किल होती। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने ही इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो ये ऑथेंटिक कुरान, ये मुस्तनद चीज हमारे दरमियान में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक अमल हमारे पास मौजूद है। मुस्लिम शरीफ देख लीजिए, आप बुखारी शरीफ देख लीजिए, सहाह सित्ता में जो 6 सबसे ज्यादा सही किताबें हैं उसको हम देखने की कोशिश करें। जब भी हम अहादीस पढ़े, लास्ट में हवाला देखें कि ये सहाह सित्ता में से और मुस्तनद अहादीस में से है या नहीं। तो इस तरह से हम अपना इल्मी इर्तिखा करें, मालूमात में हम इजाफा करें, फिक़ा पढ़ें। फिक़ा की किताबें अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास मौजूद हैं, आसान फिक़ा, फिक़ा उस सुन्ना, इस तरह की किताबें हमारे पास हों। जो भी मसले मसाइल हमको अपनी डे टू डे लाइफ में
अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हमको जो पेश आते हैं, हम इनसे उनसे मालूमात लेने के बजाय हम खुद इन किताबों से इस्तेफादा करते हुए मालूमात हासिल करें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ ही हमको जो भी आता हो, जहाँ तक भी हमें लिखना पढ़ना, यानी पढ़ने के लिए देखिए, लिखने के लिए, किसी इल्म को सीखने के लिए कोई उम्र की जरूरत नहीं, एक उम्र की कैद नहीं होती है। इंसान किसी भी उम्र में इल्म सीख सकता है। तो हमको चाहिए कि हम इल्म हासिल करें, लिखना पढ़ना समझना, ये सारी चीज़ों पर हम भी गौर करते हुए अपना एक टाइम टेबल हम बनाएं कि हम अपना इस तरह से इल्मी इर्तिखा करेंगे और अपनी यानी सारी मालूमात का ज़ख़ीरा हमारे पास भी जमा हो। जब हमारा इल्मी इर्तिखा होगा और हम सारी चीज़ों को समझेंगे, मुस्तनद ज़राए से समझेंगे, तो फिर इंशाल्लाह हम अच्छे से अमल भी कर सकेंगे और दूसरों तक इन तालीमात को हम पहुँचा सकेंगे। साथ ही हमारी और जो जिम्मेदारी बनती है वो ये है कि औलाद की तरबियत की तरफ हमारी खुसूसी तवज्जो हो। इन दिनों में हम अपने बच्चे अगर छोटे हैं, 7 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, 10 साल के हैं, तो हम उनको रोज़े रखने की तरगीब दिलाएं। जो इब्तिदा से ही इस तरह की तरगीब उनको मिलती है और ये काम करते हैं, तो आगे चलकर उनके लिए कोई परेशानी नहीं होती। तो यहाँ पर कोशिश ये हो कि हम अपने बच्चों को भी रोज़े रखने की तरफ मुतवज्जो करें, उनको भी जो है उसमें हम आगे बढ़ाएं, उनको भी सही सारे तरीके उनको समझाएं, हम इस चीज़ की तरफ राग़िब करने की कोशिश करें। आज आप गौर कीजिए, जिन हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, हमारी नौखेज़ नस्लें इस्लामी तालीमात से दूर होती जा रही हैं। तो हमको इसमें कोशिश ये करना है कि हम अपने लड़के लड़कियों को, अपनी औलाद को हम सहाबा सहाबियात के वाक़यात हम सुनाएं, एक वक्त अपने बच्चों के साथ फारिग करें, उन पर यानी इस्लामी तालीमात के ताल्लुक़ से डिस्कशन करें। इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। और एक अहम काम देखिए कि रमज़ान में एक वक्त मुक़र्ररा तक, जैसे आप देखिए आजकल जैसे गुटखा और सिगरेट नोशी, ये जो हमारे नौजवान लड़कों में ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ये तो हम यहाँ अपने बच्चों को इस बात की तरफ राग़िब करें कि देखो 1 महीना हम इससे किस तरह से बचे रहें। तो यानी ये चीज़ हमसे छूट सकती है। हम कोशिश करेंगे अपने आप पर, यानी हमारे नफ्स पर अगर कंट्रोल होगा तो ये चीज़ छूट सकती है। चाहे हमारे शौहर हों, चाहे हमारे औलाद हों, जो इस बुराई में, जो इस लत में, इस आदत में पड़ चुके हैं, तो हमको चाहिए कि हम उन्हें बताएं कि देखिए इसको छोड़ा जा सकता है। हम उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं, इसकी मुज़िरात बताएं कि इससे कितने नुकसानात हैं जो हम अपने जिंदगियों में अपने आप पर ही करते हैं। तो यहाँ ये कोशिश भी हो कि जो बुरी आदतें हैं हम उसको भी इन दिनों में हम पूरी तरह से छोड़ने की कोशिश करते रहें। साथ ही एक और जो जिम्मेदारी हमारी बनती है वो ये है कि हम लग़वियात से परहेज करें। लग़व बेहुदा चीज़ें, इस्लाम में लग़वियात यानी एक मोमिन के पास तो वक्त ही नहीं होता कि अपने कामों को बेकार और फजूल कामों में सर्फ करे। मोमिन के पास तो एक एक लम्हा कीमती होता है, क्योंकि एक एक लम्हे के बारे में अल्लाह ताला से पूछेगा। तो यहाँ पर हमें लग़वियात से परहेज करना है। टीवी के सामने बैठकर यानी घंटों सीरियल्स देखना, पिक्चर्स देखना, हम इससे बिल्कुल बचने की कोशिश करें। जैसे अक्सर होता है कि चलिए रमजान आ गया, टीवी बंद हो गई, फिर जैसे ही रमजान खत्म हुआ फिर से जो है सो वो हमारी जिंदगियों में फिर से आ जाती है। तो यहाँ हम कोशिश करें कि जिस तरह से हम इन चीजों से रमजान में दूर थे, बाद के दिनों में भी हम इससे दूर रखने की कोशिश करेंगे। हाँ, आप मालूमाती प्रोग्राम देखिए, जैसे आप अभी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो इस तरह का कुछ मालूमाती प्रोग्राम आप देख सकते हैं, अपनी मालूमात में इजाफा कर सकते हैं, न्यूज देख सकते हैं, लेकिन बिना वजह के सीरियल्स में जिसमें बेहुदा तालीमात, आज आप देखिए क्या क्या कुछ नहीं हो रहा है। तो ये पिक्चर्स में और सीरियल्स में अपने वक्त को बिल्कुल ज़ाया न करें, बल्कि हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल करने वाले हैं। और हम बिल्कुल यानी यहाँ पर तो हम ऐसा भी ना होने पाए कि भी बोर हो रहे हैं रमजान में, अब क्या करें और हम वक्त कैसे गुजारें, अपनी बोरियत को दूर करने के लिए हम इस तरह के काम बिल्कुल न करें, बल्कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब होने की हम कोशिश करें, अल्लाह ताला से हिदायत मांगे, अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत हम मांगते रहें। तो यहाँ पर हमें कोशिश करना होगा कि ये 1 महीना हम पूरी तरह से लग़वियात से बचेंगे, तो इंशाल्लाह हम बाद के 11 महीनों में भी इससे बचने की कोशिश करते रहेंगे। तो इस तरह की हमारी कोशिश हो। साथ ही फजूल खर्ची से हमें इज्तनाब करना होगा, फजूल खर्ची से हमें बचना होगा। देखिए आज खवातीन को और बच्चों को नजर में रखे कई एडवर्टाइज आते हैं और इतने सारे, यानी आजकल तो हालत ये हो गई है कि जो चीजें हम खरीदते हैं वो तो उसकी जरूरत ही नहीं होती। यानी पहले यूँ होता था कि कोई चीज की जरूरत हो तो वो चीज खरीद कर लाई जाती थी घरों पर, लेकिन आज यूँ हो रहा है कि जिस चीज की जरूरत नहीं है हम बस मार्केट में जा रहे हैं, फलां की सेल फलां सेल, और इस तरह का पेपर्स में भी सेल के एडवर्टाइजमेंट देखकर जो है हम चले जाते हैं और जरूरत जिस चीज की जरूरत नहीं भी है हम उन चीजों को अपने घर लेकर आते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शैतान, जो फजूल खर्च होते हैं शैतान के भाई हैं।
हमें इससे बचना होगा। हम खिनात की जिंदगी इख्तियार करें, हमारे अंदर खिनात आए कि जो अल्लाह ने दिया है बहुत दिया है, अल्लाह का शुक्र एहसान है। हम अपने से नीचे के लोगों को देखने की कोशिश करें तो हमारे अंदर शुक्र का जज्बा पैदा होगा, हमारे अंदर खिनात आएगी। अगर हम अपने से ऊपर के लोगों को देखने की कोशिश करेंगे तो हमारे अंदर नाशुक्री पैदा होगी, और नाशुक्री करने से नेमतें छिनती हैं, और शुक्रगुजारी करने से अल्लाह ताला नेमतों में इजाफा करते हैं। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुमको और ज्यादा दूंगा। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, तो ध्यान रखो तो नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। तो यहाँ हमें इस बात पर गौर करना होगा कि हम खिनात की जिंदगी गुजारें, जो भी है बहुत है, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र एहसान है, उसका शुक्र अदा करते रहे हम। तो यहाँ फजूल खर्ची से हमें बचना होगा, और ये फजूल खर्ची ही आप देखिए आज फजूल खर्ची की इंतहा हो जाने की वजह से हमारी जिंदगियों से सुकून भी मिट गया है। हम हर चीज बस ये नहीं है, ये नहीं है, ये लाना है और ये लाना है, और इस तरह से हम अपनी सारी ये फजूलियात को जमा करने में हम लगे हैं, अपने वक्त को हम इसमें बर्बाद कर रहे हैं, अपनी बेहतरीन जहनी सलाहियतों को हम इसमें बर्बाद कर रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे मेरा घर ऐसा हो, मेरा ड्राइंग रूम ऐसा हो, मेरे ड्रेसिंग ऐसी हो, मेरे जेवरात ऐसे हों, यानी जो कि सारी चीजें जो मुझे यहाँ छोड़ कर जाना है। मेरे साथ क्या आएगा? मेरे अमाल आएगा, मेरे जो भी सदकात है वो आएंगे। तो यहाँ हमें गौर करना होगा कि हम इस फजूल खर्चियों से हम बचने की कोशिश करें, खिनात वाली जिंदगी गुजारें, और हाँ नेकियों में सबकत ले जाने की कोशिश करें। आज हमारा मामला थोड़ा सा बदल गया है कि हम नेकियों में खिनात कर रहे हैं कि भाई चलिए नमाज तो पढ़ रहे हैं ना, कुछ रोजे तो रख ही लेते हैं ना, और यानी यहाँ पर दुनिया के मामले में तो तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। लेकिन यहाँ पर हमें यूँ करना है कि नेकियों में सबकत ले जाना है, आगे बढ़ जाना है। जैसे देखिए सहाबा और सहाबियात का जो अमल था हमारे सामने है, हमारी सुनहरी तारीख इससे भरी पड़ी है कि किस तरह सहाबा और सहाबियात नेक कामों में एक दूसरे से सबकत ले जाया करते थे, आगे बढ़ जाने की कोशिश करते थे। तो हमें चाहिए कि हम नेकियों में आगे बढ़ने की हम कोशिश करें, और दुनिया के मामले में हम खिनात इख्तियार करें, इसलिए कि चाहे जितना भी जमा कर लें, चाहे जितना भी ला लें, हमें ये सब यहाँ छोड़ कर ही जाना है। हमारे साथ कुछ नहीं आएंगे सिवाय हमारे अपने अमाल के, सिवाय हमारे अपने सवाबे जारिया के, हमारी अपनी औलाद की जैसे हमने तरबियत की है और वो जैसे काम करेगी, तो ये सारी चीजें हमारे साथ आने वाली है। तो जो दायमी जिंदगी के लिए, जो हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे साथ रहेंगी, उन चीजों पर हमें तवज्जो करना होगा, और उसके बारे में गौर करना होगा कि हमने उस दिन के लिए क्या तैयारी की, किस तरह से हम अपने उस आखिरत के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया आखिरत की खेती है। जिस तरह से हम यहाँ पर काम करेंगे, जैसे अमाल करेंगे, उसका बदला हमें आखिरत में जाकर मिलेगा। तो यहाँ हमें चाहिए कि हम खिनात वाली जिंदगी गुजारें, परहेजगारी वाली जिंदगी गुजारें, और फजूल खर्ची से हम बचते रहें। हम फिर आगे देखें तो हम यहाँ पर अपना एहतिसाब भी लें। जैसे शब क़दर के बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है कि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताख़िरातों में से तलाश करो। तो यहाँ हमें रमज़ान के आखिरी अशरे में 21वीं शब, 23वीं, 25वीं और 27वीं और इस तरह से 29वीं शब को हमें जाग कर अल्लाह ताला की इबादत में हमें मशगूल रहना है, ताकि हम इन रातों में, पता नहीं कौन सी रात है शब क़दर की, क्यों हमें मिल जाए जिसमें इतना बड़ा काम हुआ, जिसमें इंसानियत के लिए कुरान मजीद जो नाज़िल हुआ है। तो हम शब क़दर का एहतमाम करें, हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अल्लाह ताला के करीब हों। अब इन रातों में देखिए हमारा मामला क्या होता है हम ख़वातीन का, कि अक्सर हम चलिए ख़ज़ाए उम्री इस तरह की जो है नमाजें हम पढ़ना शुरू कर लेते हैं, जबकि आप फ़िक़ा देख लीजिए उठाकर, ख़ज़ाए उम्री की बात आपको वहाँ नहीं मिलेगी, आपको वहाँ पर साहिब तरतीब की बात मिलेगी। यानी अगर आपकी 1 महीने की या 1 साल की किसी बीमारी की वजह से, किसी वजह से आपकी नमाज छूट गई है, तो आपको नमाजों को आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको सिर्फ नवाफिल पढ़ने हैं, क्योंकि कल जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमारी नमाजों का हिसाब लेंगे, तो और हमारी फर्ज नमाजें अगर कम रहेंगी तो अल्लाह ताला हमारी नवाफिल को देखेंगे। तो हमें नफिल नमाज पढ़ना है, और साथ ही हम कुरान मजीद की कोई ना कोई एक सूरा लें, उसको तर्जुमे के साथ, उसको तफसीर के साथ पढ़कर हम समझने की कोशिश करें। हम इन रातों में मनसूबाबंदी करें कि आइंदा आने वाले रमजान तक अल्लाह ताला ने अगर मुझे जिंदा रखा तो मैं इंशाल्लाह पूरी कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़कर देखूंगी। कुछ मखसूस सूरतें जैसे सूरह यासीन में अक्सर पढ़ती हूँ, तो उसका तर्जुमा और तफसीर क्या है, सूरह मुल्क को पढ़ने के बारे में आता है तो उसकी तर्जुमा और तफसीर क्या है, खास तौर से जो 30वां पारा है उसको हम उस तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़कर देखें।
यानी इस तरह का प्लान बनाए, हम इस तरह की हमारी मनसूबाबंदी हो कि हम यानी आखिरी जो हमारा शब रहेगी, शब कदर वगैरह जो हमारी गुजरेगी, तो हम इसमें अपनी इस तरह की प्लानिंग करें कि आने वाले साल तक मैं ये और ये काम करूँ। इस तरह की अगर हमारी मनसूबाबंदी रहेगी तो हम इंशाअल्लाह फिर वो सारी चीज़ों को हम पूरा भी करने की कोशिश करते रहेंगे। फिर साथ ही देखिए लैलतुल जायज़ा भी आता है, और आप गौर कीजिए हम ख़वातीन में अक्सर ये बात होती है कि पहले से तो यानी कुछ तैयारी नहीं कर लेते हैं और फिर चले आखिरी अशरे में बाज़ारों में आप देखिए ख़वातीन बुर्का पहने हुए बाज़ारों में घूम रही हैं, बस ये खरीद रही हैं, वो खरीद रही हैं, इस तरह की जो है वहाँ पर यानी दौड़ लगी हुई रहती है। हमें इससे बिल्कुल बचना होगा। ये अशरा तो हमें बहुत ज़्यादा इबादत में गुजारना है। हम रमज़ान की तैयारी पहले से कर लें, पहले से जो भी चीज़ें लगती हैं हम ला लें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज यानी जो कुछ भी नवाजा है, हाँ जिनके पास समझिए अगर माल दौलत ना हो और उनको उसी वक्त मिलता हो माशी, अगर उनको परेशानी हो तो ये और बात है, लेकिन जिनके पास है उनको चाहिए कि वो पहले से ये सारी तैयारियां करके रख लें और इस आखिरी अशरे को इबादत के लिए पूरी तरह से हम महसूस कर लें। तो यहाँ हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम आखिरी अशरे में बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे, बाजारों में नहीं जाएंगे, बल्कि हम यहाँ घरों में रहेंगे। और लैलतुल जायज़ा जो होती है यानी जो चांद रात होती है, हम उस रात में मेहंदी के डिज़ाइन डालने में और इसमें हम अपने वक्त को शीरखुरमे के मग़ज़ियात बनाने में, इसमें हम अपना वक्त सर्फ कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें ये कोशिश करना है कि हम उस रात में अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाएं। वो मजदूर को मजदूरी मिलने वाली रात होती है, हम उस रात में अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाएं कि अल्लाह हमने इस माह रमज़ान का जो महीना पाया, जो बड़ा ही बाबरकत महीना था, जिसमें हमें अपनी मग़फ़िरत करनी थी, जिसमें अपनी नजात करवा लेनी थी, हमने इसमें कहाँ तक और क्या किया और कितनी चीज़ें कबूल हुई। अल्लाह तू ही कबूल करने वाला है, तो कबूल फरमा हमारी दुआओं को, हमारी इबादतों को। इस तरह की हमें कोशिश करनी है। तो हम इस लैलतुल जायज़ा को भी हम यूं ही नहीं गंवा देंगे। मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि आप मेहंदी ना लगाएं, आप तैयारी ना करें, काम का एक सिस्टमेटिक अंदाज हो, यानी हम मनसूबाबंदी कर लें कि मैं इतने वक्त में ये काम कर लूंगी, फिर उसके बाद मैं इबादत में लग जाऊंगी, ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मैं इबादत में सर्व करूंगी। तो ये कोशिश हमें करना होगा कि एक यानी बेदार मग़ज़ खातून की तरह हम अपने कामों की मनसूबाबंदी करें और कामों को मैनेज करते हुए हम अपने ज्यादा से ज्यादा वक्त को इबादत में लगाएं, अपने औलाद की तरफ मुतवज्जह होते रहें। तो ये रमज़ान को हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में हम कर सकेंगे। तो हमें चाहिए कि इस रमज़ान मुबारक का जो बाबरकत महीना है, इसकी बरकतों को समेटने की हम पूरी तरह कोशिश करें और इसमें अपनी मग़फ़िरत कराने की पूरी तरह से कोशिश करते रहें और पूरे ईमान और एहतिसाब के साथ हमारे रोज़े हों, ईमान और एहतिसाब के साथ हमारी रातों में अल्लाह ताला के सामने इबादत करना हो। वरना हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वईद पर भी हमें गौर करना होगा कि आप सल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे होते हैं जिन्हें अपने रोज़े से भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता। बहुत से रातों में जगने वाले ऐसे होते हैं जिन्हें अपने रातों में सिर्फ रत जगह के सिवा कुछ नहीं मिलता। अल्लाह ताला हम तमाम को इससे बचाए और ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, रातों में इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और तक़वा और परहेज़गारी हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।